गुजरात के पालनपुर से वैष्णव देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर गए 20 से अधिक पर्यटक अचानक बादल फटने की घटना के चलते रास्ते में ही फंस गए हैं। गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर से अंबिका ट्रस्ट एंड ट्रैवल्स के माध्यम से 12 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 12 दिवसीय यात्रा पर निकले पर्यटक वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के बाद 20 अप्रैल को वापसी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अचानक बादल फटने और भारी पानी के कारण पहाड़ धंसने लगे और नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे पर्यटक वहीं पर फंस गए हैं। गत शनिवार 12 તારીખના રોજ મારા મમ્મી પપ્પા અને મારા કાકા કાકી એમની દીકરી એમનો ભાણિયો અને બીજા પણ સાથે સગા સંબંધીઓ અહીંયા મીરા દરવાજા 11:30 વાગે અહીંથી ટ્રાવેલ્સની અંદર કાશ્મીર જવા રવાના થયેલા હતા અને લગભગ 9 દિવસ પૂરા થઈ ગયા હતા અને છેલ્લો દિવસ બાકી હતો અને કાશ્મીર શ્રીનગરથી નીકળ્યા અને રસ્તામાં રામબન ખરું ત્યાં પર્વતીય વિસ્તારમાં ભૂસ્ખલન થયું એટલે ભેખડોને બધું પડી છે। એના કારણે રસ્તાઓ બધા બંધ થઈ ગયા છે અને સેકન્ડો ગાડીઓ પણ ખાણમાં જતી રહી છે ખીણમાં અને જેના કારણે રસ્તો બંધ છે તો એ લોકો અત્યારે પોતાની ગાડી ત્યાં ટ્રાવેલ્સે ફસાઈ ગયેલી છે અને એ લોકો મુશ્કેલીમાં છે અત્યારે ત્યાં અને એમને અમારા ટેલિફોનિક કાલે મારા પપ્પા જોડે વાત થઈ તો એમણે મને વાત બધી કરી કે બેટા આવું થયેલું છે કે ભૂસ્ખલન થયો છે, અહીંયા આટલા લોકો મરી ગયા છે અને અમારી ગાડી પણ ફસાઈ ગઈ છે, આજુબાજુમાં ભેખડો પણ પડેલી છે પણ અમે અહીંયા સુરક્ષિત છે। અને આજે સવારે પણ વાત થઈ તો એમને એવું કહ્યું કે રાતે પ્રશાસન આવ્યું હતું 10:30 વાગે, અમને જમવાનું પણ આપ્યું છે, પાણી પણ આપી ગયા છે અને મેં આજે ગાડીની અંદર મેં રાત વિતાવી છે રાત્રે, એવી અમને વાતચીત કરી છે। પણ આજે મારે તંત્રના માધ્યમથી એટલું કહેવું છે કે એ લોકો આજે ટ્રાવેલ્સની અંદર છે પણ એ લોકો ડરી ગયેલા છે અને પપ્પાનું આજે ફોનમાં એવું કહ્યું હતું કે અહીંયા એટલી ઊંચી ઊંચી ભેખડો છે, જો ફરી આવી ઘટના બને તો ભેખડો પડે તો અમે પણ અહીંયા અસુરક્ષિત છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં તાજેતરમાં જે ક્લાઉડ બસ્ટ અને લેન્ડ સ્લાઇડિંગની ઘટના ખરાબ હવામાનને કારણે બની છે તેમાં ગુજરાતના મુસાફરો અને એક બસ ફસાઈ હોવાના સમાચાર મળ્યા હતા। ઘટનાની માહિતી મળતા તરત જ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસન સાથે સંપર્ક કરી અને પ્રવાસીઓને કોઈપણ જાતની અગવડ ન પડે અને વહેલામાં વહેલી તકે ખરાબ જે વાતાવરણમાં ફસાઈ ગયા હતા ત્યાંથી કાઢવા માટેની સીધી સૂચના આપવામાં આવી હતી અને અત્રેના ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર કચેરી બનાસકાંઠા તથા ગૃહ વિભાગ સતત જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસન સાથે સંપર્કમાં જે મુસાફરો ફસાયેલા હતા તેમના માટે કામગીરી ચાલી રહી હતી। આ જે મુસાફરો હતા એમાંથી કુલ 50 લોકો ગઈકાલે રાત્રે ફસાયેલા હતા, જેમાં પાલનપુરના 17, વડગામના 11, ગાંધીનગરના 19 અને મહેસાણા જિલ્લાના 3 એમ કુલ 50 મુસાફરો હતા, જેમાંથી 24 પુરુષો અને 26 મહિલાઓ હતી। 50 મુસાફરોમાં એક 8 વર્ષનું બાળક પણ હતું અને 50 મુસાફરો પૈકી 27 સિનિયર સિટીઝન હતા। અત્રેથી 7 વાગે શ્રી બશીર ચૌધરી કલેક્ટર રામબનનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને તરત જ તેમણે મુસાફરોને તમામ પ્રકારની મદદ મળે તે માટે ખાતરી આપી હતી અને તાત્કાલિક રીતે રેસ્ક્યુ ટીમ રવાના કરી હતી। પરિસ્થિતિ ત્યાં આગળ થોડી ખરાબ હતી એટલે અંદાજિત 6.5 કિલોમીટરના અંતરેથી રેસ્ક્યુ ટીમનું વાહન જઈ શકે એવું ન હતું। આથી જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસનની જે ટીમ હતી એમના દ્વારા પગપાળા જઈ અને રાત્રે 11:30 વાગે બસમાં જે મુસાફરો ફસાયેલા હતા એમનો સંપર્ક કરી લીધો હતો। અડધી રાત્રે જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસન દ્વારા તેમના માટે જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી અને ટીમ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ ત્યાંના કલેક્ટર રામબન દ્વારા અત્રેની કચેરીએ અપડેટ પણ આપવામાં આવી હતી। હાલમાં તમામ જે મુસાફરો છે એ सुरक्षित है। शादी का सीजन है लेकिन इस बार दूल्हा दुल्हन से ज्यादा चर्चा में है सोने की कीमत। सोना फिर एक बार अपने रिकॉर्ड तोड़ अंदाज में बाजार में छा गया है। शादी का सीजन और सोने की चमक दोनों अपने चरम पर है, लेकिन इस बार बात सिर्फ चमक की नहीं बल्कि आसमान छूती कीमतों की है। सोने चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। गुजरात में सोने ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। डॉलर में गिरावट, अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर और वैश्विक आर्थिक मंदी के डर ने सोने को निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प बना दिया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड पहली बार $3,400 प्रति आउंस के पार पहुंच गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 1 तोला सोना 1,116 रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें GST भी शामिल है। वहीं दिल्ली में भी ये 99,800 रुपए के करीब बंद हुआ।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना 98,991 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में चांदी 97,500 रुपए प्रति किलो पर, जबकि MCX पर ये 95,840 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। GST जोड़ने के बाद चांदी की कीमत 98,715 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। 22 अप्रैल की सुबह इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 97,560 रुपए और 22 कैरेट की कीमत 89,430 रुपए दर्ज की गई। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं।
BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने हंगामा किया। वडोदरा के वासना रोड स्थित संत कबीर स्कूल पर अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल प्रबंधन की मनमानी से परेशान होकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रुख किया। इस बार मामला स्कूल की मनमानी से जुड़ा है, जहां फीस भरने के बावजूद छात्रों को LC यानी लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि वो बकाया फीस वसूलने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहा है। मिडनाइट मेल और मैसेज भेजकर अभिभावकों से बकाया राशि जमा करने की मांग की जा रही है, जिसके चलते अभिभावकों में नाराजगी है।
हम डीओ कचेरी में आए हैं आज। कल संत कबीर स्कूल में हम लोग गए थे, हमको पेपर शोइंग के लिए बुलाया था और बोला था कि फी एडजस्टमेंट के लिए बुलाया था, पर वहाँ पे पहुँचते ही हमको ये एक कागज पकड़ा दिया कि एसआरसी के रूल के हिसाब से हमको इतना फीस पे करना है। वो लोग केस जीत गए, इसके लिए हमने सारा फी पे किया है, फिर भी वो बोले कि हम केस जीत गए हैं तो आपको ये फीस भरना पड़ेगा। आप फीस नहीं भरोगे तो आपको एलसी नहीं मिलेगा, तो वो तो गलत चीज है। तो ये सब के लिए हमने प्रिंसिपल को मिलने के लिए 2-3 बार हमने बोला कि प्रिंसिपल को बुलाइए, पर प्रिंसिपल सामने नहीं आए। बाद में थोड़ा मगजमारी ज्यादा हुआ तो प्रिंसिपल आए, पर बोले कि 1 to 1 पेरेंट मिलेंगे, सबको अंदर जाने को नहीं मिलेंगे। हमारे सामने तो आए ही नहीं। बाद में पेरेंट्स को ना मिलने के बाद सब पेरेंट्स वहाँ पे पहुंच गए तो वो लोग ऑफिस छोड़ के ही चले गए। पेरेंट्स प्रिंसिपल वहाँ पे थे ही नहीं, प्रिंसिपल चली गई ऑफिस बंद करके। ये चीज तो गलत है। हमने ये चीज बहुत मगजमारी करने के बाद उन लोगों ने ऐसा बोला कि आपको मीडिया को बुलाना तो आप मीडिया को भी बुला सकते हो और पुलिस को भी बुलाना तो बुला सकते हो। हम शिक्षण अधिकारी से बात करेंगे, गांधीनगर जाएंगे। केस तो मतलब पैसे तो हम नहीं देंगे ना, पैसे जड़ पे तो उगते नहीं है। हम किस चीज के पैसे दे? 15,000 हमने काय के दे? मेरे बच्चे पढ़ लिए हैं, रिजल्ट आ गया, ये स्कूल छोड़ने के ये लोग पैसे ले रहे हैं। ये चीज गलत है, ये लोग नहीं उठा सकते। वहीं इस मामले जिला शिक्षा अधिकारी महेश पांडे ने जानकारी दी। आज વાસણા સંત કબીર સ્કૂલ ના વાલીઓ સ્કૂલ બાબતે ફરિયાદ લઈને આવ્યા છે। એફઆરસી પ્રમાણે ફી લેતી નથી એ એમનું સૂચન છે। એ ઉપરાંત ટર્મ ફી વધારે એક્સ્ટ્રા માંગે છે, એ પણ એમની રજૂઆત છે। વાલીઓનો એવો પણ આક્ષેપ છે, સાહેબ અમને રાત્રે 11 વાગે ઈમેલ કરીને પણ અમને હેરાન કરવામાં આવે છે, અમારા બાળકોને એલસી આપતા નથી। તો કોઈ પણ સ્કૂલ ગમે તે બોર્ડની હોય, કોઈ પણ બાળકનું એલસી અટકાવી શકે નહીં। પણ સાથે સાથે ધારો કે જે બાળક અત્યારે એપ્રિલમાં દાખલ થયું છે, એનું ટર્મ શરૂ થઈ ગયું છે, તો એને 1 માસની ફી તો એને ભરવી પડે। બાકી શાળા સામે શાળાને સૂચના અપાઈ ગઈ છે। વાલીઓને પણ મારું એવું કહેવું છે, તમે અત્યારે જાઓ અને તમને સહકાર આપશે। જો સહકાર નહીં આપે તો આપણે જેમ અગાઉ જેમ સ્કૂલો સામે આપણે પગલાં લીધા, એની સામે પણ આપણે કડકમાં કડક પગલાં લઈશું અને સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એની કાર્યવાહી કરીશું। એ ઉપરાંત આની જાણ सीबीएसई ने पण આપણે કરીશું। गुजरात के सूरत में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इन दिनों बॉलीवुड फिल्म फूले को लेकर जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप सुर्खियों में है। फिल्म से ब्राह्मण समाज पर उठे विवाद मामले अनुराग कश्यप की एक टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में रोष है, जिसके चलते सूरत में ब्राह्मण समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है। सूरत ब्राह्मण समाज ने सूरत कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का आरोप है कि फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है। हालांकि अनुराग कश्यप ने अपने इस बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन इस समाज में अब भी रोष है। आज समस्त ब्रह्म समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और हम एक आवेदन देने जा रहे हैं। आवेदन है दिग्दर्शक श्री कश्यप जी के खिलाफ, अनुराग कश्यप जी के खिलाफ, और वो ये है कि आप इतना निंदनीय कृत्य कर कैसे सकते हैं? आप इतने लर्नेड इंसान हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आपने बनाई है, आपने उन मूवीज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विषय उठाए हैं, और आपने ब्राह्मण समाज के सर पे बैठ के मैं मूतूंगा ऐसा एक वाक्य लिख के दे दिया। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? शायद आप बहुत ज्यादा विद्वान हो गए ऐसा लग रहा है। तो प्लीज अनुराग कश्यप जी अपने आप को वहां पे होल्ड कीजिएगा, और आपको जाहिर में आके एक वाक्य की नहीं, पूरे पोस्ट के लिए माफी मांगनी है और पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी है। आज हम यहाँ पे कलेक्टर श्री को आवेदन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये आवेदन देने के साथ हम कलेक्टर श्री से निवेदन करेंगे कि ये सरकार तक पहुंचाया जाए। आज सूरत कलेक्टर ऑफिस पर समस्त ब्राह्मण समाज के युवा पाक, महिला पाक और सभी ब्रह्म समाज के अग्रणी वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग कुछ दिनों पहले जो फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने जो अभद्र टिप्पणी की थी ब्राह्मण समाज के लिए, उसके लिए बहुत व्यथित हैं, दुखी है। अशोभनीय शब्द प्रयोग को हम लोग सख्त शब्दों में उनका विरोध कर रहे हैं। उनको अगर ब्राह्मण समाज का इतिहास पता नहीं है तो पहले पढ़ लेना चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं से लेकर के हमारे आज के आधुनिक इतिहास तक, आजादी की सबसे पहली लड़ाई में मंगल पांडे से लेकर के अगर आप देखें तो हमारे आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक का इतिहास आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने सभी समाज को, जाति को, वर्ण को, पूरी व्यवस्था को देश के लिए समर्पित भाव से एक दलित को उठा करके राजा बनाने का कार्य भी आचार्य चाणक्य ने किया था।